وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق و وفا میں ایسے تھے اللہ کے رسول، کافر بھی مانتے تھے، کافر بھی مانتے تھے صداقت رسول کی۔ آپ کا ذہن موبائل والا نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم آپ موبائل کا استعمال کریں۔ یہ موبائل کا استعمال ضرورت کے تحت ہی کریں۔ مان کے چلیے آپ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کریں، لیکن ایک تحقیق کے ساتھ آپ کے ساتھ 3-4 ایڈورٹائز ایسی چیزیں آ گئی کہ آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ تو آپ کا ذہن جو ہی بھٹکا، آپ کی پختگی پھر ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لائبریری کا استعمال کریں، کتابوں سے استعمال کریں۔ بہرحال الحمدللہ آج کے آپ کے پروگرام میں شرکت کیا، اس کے لیے میں تمام اساتذہ کرام کا مشکور ہوں، خاص طور پر نادی و طلباء کے ذمہ دار کا، کہ انہوں نے بار بار اصرار کرنے کے بعد مجھے اس کام کے لیے مجبور کر دیا کہ میں آپ کے درمیان آؤں۔ اس کے لیے ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں اپنے استاد گرامی صدر نادی الطلباء فضیلت الشیخ کوثر تسنیم اسلامی حفیظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور آگے کے پروگرام کے فرائض کو انجام دیں۔ آج کی یہ بابرکت اور باوقار محفل دلیل، فکر اور حسن اظہار کا حسین سنگم ہے۔ مباحثہ دراصل اپنی بات منوانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دلیل کے ساتھ کہنے، مختلف رائے کو سننے اور تہذیب و تمدن کے لبادے کو زیب تن کرنے کا نام ہے۔ اساتذہ جیسے مقدس ترین ہستی اور اس کی مسند کو بے ہوش بے ہنگم معلومات کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ گوگل اور فضیلت الشیخ جناب چیٹ جی پی ٹی حفیظ اللہ اور اسی طرح سے روبوٹ جیسے مہلک خطرات کو ہمارے سامنے لا کر پیش کر رہے ہیں، اور اساتذہ جیسی مقدس ترین ہستیوں کی عظمت میں، افادیت میں آپ اس کو گھٹا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی اور مصنوعی ذہانت ہم طلباء کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مصنوعی ذہانت کے مشہور و معروف بادشاہ، بے تاج بادشاہ ایلون ماسک کا کہنا ہے، اور اس کے ہمنوا ٹیم آئی ٹی کے محققین پیشین گوئی ہے کہ اے آئی مصنوعی ذہانت طلباء کے لیے خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ۔ اے آئی مصنوعی ذہانت اگر آپ اس کو قابلیت اور تخلیقی، تحنیکی اور تجزیہ نگاری اور خداداد صلاحیت کا نام اگر آپ مصنوعی ذہانت کو سمجھتے ہیں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹائم 2 منٹ کا ہے، لیکن بھائی 10 منٹ سے تقریر فرما رہے ہیں۔ ایک چیز کہ اے آئی سے ہم لوگ نقل کرتے ہیں، کچھ بھی چیز اس سے لکھوا لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے آئی سے پہلے لوگ نقل نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے، گوگل سے لوگ نقل کرتے تھے، موبائل سے لوگ نقل کرتے تھے۔ اس میں اے آئی کا مسئلہ نہیں ہے بچے، بلکہ اس میں طلباء کی نیت اور نگرانی کا مسئلہ ہے۔ وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود اور لعنت بھیجے شیطان پر۔ حضرات گرامی، ہمارے مخالفین ٹیم جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اے آئی ہم سب طالب علم کے لیے کارآمد ہے یا مضر ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کارآمد ہے، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھا جائے کہ ایک طالب علم جو کتاب کی مطالعہ کرنا ان کا ہدف ہے، ان کا مقصد ہے، اور وہ غور و خوض کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، فکر سے کام لیتا ہے، اپنے سلیم سے مسئلے کا استنباط کرتا ہے، لیکن وہ ان سب باتوں کو چھوڑ کر کے اور اساتذہ سے روبرو کرنے کے بجائے اور صفحہ کتاب کی ورگردانی کی بجائے صرف اے آئی کا سہارا لے کر کے، گوشہ نشینی اختیار کر کے، صرف ان سے مدد لے کر کے اگر چاہے کہ ہم ایک صحیح معنی میں ایک حقیقی طالب علم بن جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اے آئی ہم سب طالب علم کے لیے مفید تو ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ہم خود سے اس کو ابھی استعمال کریں۔ ہم لوگ ابھی زمانۂ طالب علم میں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اساتذہ کے روبرو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو جائیں، ان سے رجوع کریں، ان سے مسئلے کے بارے میں غور و خوض کریں، اور پھر جد و جہد کریں، مسلسل محنت کریں۔ دینا چاہتا ہوں کہ کیا کتابیں نقصان دائک ہے؟ کیا انٹرنیٹ نقصان دائک ہے؟ نہیں، نقصان دینا کتاب ہے نہ انٹرنیٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح اے آئی بھی ایک سازمنٹ ٹول ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر کہ اے آئی کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو فائدے کے حساب سے استعمال کریں گے تو اس کے ڈھیر سارے فوائد ہیں۔ آپ چیٹ جی پی ٹی ہو، اے آئی ہو، جیمینی ہو، سوشل میڈیا کے جدید ترین چاہے جتنے بھی ٹیکنالوجی کے ہتھیار سے لیس کریں، آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، آپ اے آئی کو آسان بھاشا میں سمجھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا قدیم زمانے میں اگر ہم چلے جائیں، اگر رات کے 12 بجے میں پھر آپ کو وہی سوال کرتا ہوں کہ چیٹ طلبا کے لیے اے آئی 24 گھنٹہ اس کے استاد ہیں۔ آپ اے آئی سے آپ جتنا سوال پوچھیں گے ان کے لیے فائدے ہیں، نہ اے آئی تھکتا ہے، نہ اے آئی آپ کو آسان بھاشا میں ہر چیز سمجھا سکتا ہے۔ اساتذہ ہیں، جامعہ میں آپ رہ کر اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اساتذہ آپ کے لیے کلاس ٹائم ہے،
और भी दिगर टाइम है, लेकिन AI आपके साथ हर समय है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे, आप जब भी हो AI आपको आसान भाषा में समझा सकता है। फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जदीद तरीन में अगर आप जी रहे हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी और AI के साथ अगर आप नहीं बदलना चाहते हैं, तो फिर आप पीछे ही रह जाएंगे। जैसे कि गुजरे हुए कौम ने किया, जैसे पहले भी जब कैलकुलेटर ईजाद किया तो लोगों ने कहा कि कैलकुलेटर तो गणित को खा जाएगा, ये तो बच्चे को खा जाएगा, तालिब इल्म के लिए नुकसान है। लेकिन क्या कैलकुलेटर ने गणित को खा लिया? क्या कैलकुलेटर ने सलाहियत को खा लिया? नहीं, टेक्नोलॉजी है, उसको तकनीक को इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। कि आप पहले ये जस्टिफाई करें कि इस्लामी माशरे के लिए कानून किस तरह आपकी मदद कर सकता है और इस नजरिए से आप कानून को इस्लामी माशरे के लिए जिम्मेदार तस्वुर करते हैं। हमारा उन्वान है इस्लाह मुआशरा के बेहतरी बनाने के लिए कानून ज़रूरी है तालीम। देखिए, मुआशरा सिर्फ जाहिल लोगों का नहीं होता है, उसमें अनपढ़ भी रहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, पागल भी रहते हैं, ज़हानत वाले भी लोग रहते हैं, अमीर रहते हैं, गरीब रहते हैं। मुआशरा सिर्फ हम जाहिल लोगों को मुआशरा नहीं कहेंगे। मैं सवाल करता हूँ कि अगर पढ़े लिखे ही लोग, तालीम याफ्ता लोग अगर आप चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, तो उसको क्या तालीम, दोबारा हम तालीम देंगे कि आप तालीम सीखिए या फिर कानून नाफिज करेंगे? मेरा सवाल ये है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि फिनलैंड, जापान और नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ के कैद खाना में लोगों को, मुजरिम को पकड़ने के बाद तालीम दी जाती है, और इसलिए तालीम दी जाती है कि मुजरिम जब जेल से बाहर जाए तो फिर वो दोबारा जुर्म करने की कोशिश ना करे और उसे तरबियत अच्छी तरह मिल जाए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर इन्होंने जेल खाना को तालीम का घर क्यों बनाया और क्यों कहा? नाम जाफ़र अली बिन अब्दुल कयूम। हमारे मुखालिफ हजरात कहते हैं कि मेहनत ही कामयाबी का असल राज है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि इसके मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि 2 लकड़ी काटने वाले शख्स घर से निकले और उसके बाद लकड़ी काटना शुरू किया। उनमें से पहला शख्स सुबह से शाम तक लगातार लकड़ियाँ काटते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन दूसरा शख्स उसी बीच कभी लकड़ियाँ काटते फिर आराम कर लेते। जब शाम को देखा गया कि दूसरा शख्स जो कभी कभी आराम कर रहे थे वही ज़्यादा लकड़ियाँ काट लिए, तो पहला शख्स हैरान होकर पूछा कि आप तो आराम भी करते थे और मैं सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करता रहा, तो मैं आपसे पीछे क्यों रह गया? आप मुझसे कैसे आगे निकल गए? तो दूसरा शख्स ने कहा कि मैं जब आराम कर रहा था तो उसी बीच मैं अपने कुल्हाड़ी को कभी उसी वक्त तेज़ भी कर लिया करता था। तो इससे पता चलता है कि दूसरा शख्स अपने जहन का सही इस्तेमाल करते हुए आराम भी कर लिया और उससे ज़्यादा लकड़ियाँ भी काट। जंगल का राजा शेर, ये तो सबको मालूम है ना, ये तो सबको मालूम है। जब वो शिकार करता है तो शिकार उसके बाद खुद चल कर आता है जी, नहीं आता है ना, तो उसको भी शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब वो दौड़ता है तो मेहनत नहीं होता। जब वो जहन से दौड़ता है, बैठे रहता है, सोता है, दौड़ते जब दौड़ते रहता है मेहनत के साथ नहीं, वो जब मेहनत करता है बहुत बार हार मान जाती है, उसके बाद उसको एक शिकार मिलती है तो कहता है कि आज मेरा पेट शांति हो गया। इससे साबित होता है कि मेहनत ही असल कामयाबी का राज है, सिर्फ जहन। मेरे मुखालिफ हजरात कहते हैं कि शेर बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि शेर दौड़ते हैं लेकिन वो प्रति घंटा 58 किलोमीटर की रफ्तार दौड़ते हैं, और हिरन है जो प्रति घंटा 90 किलो की रफ्तार में दौड़ते हैं। लेकिन जो शेर सोचते हैं वो हिरन नहीं सोच सकते, क्योंकि शेर के पास जहन होता है, इसलिए वो सोचता है इसको पकड़े तो पकड़े कैसे। इतना रफ्तार भागता है फिर भी उसको कैसे पकड़ता है? वो भी तो मेहनत करता है, बहुत तेज़ भागता है मेहनत करके, तो उसको पकड़ा कैसे? यही मेरा सवाल है कि वो भी तो मेहनत करता है, तो मेहनत से सब कुछ नहीं मिलती, ज़हनत भी लगाना ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम मुबाहिसा इल्मिया या डिबेट रखा गया है, इसमें शिरकत करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं शुरू से लेकर अब तक इस प्रोग्राम में शरीक रहा, तलबा की मेहनतों को मैं देखा, लिहाजा मैं मुंतज़मीन प्रोग्राम को और उनके मुआविनीन को, असातिज़ाए कराम को दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, डिबेट महज एक मुकाबला नहीं है, बल्कि फ़िक्र व बयान की तरबियत, क़ुव्वत इस्तिदलाल और हुस्न बयान नीज़ वुसअत मुतालात को पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। एक नई चीज़ और वक्त और हालात का तकाजा, उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए, और मुरब्बी अंजुमन ने इसके तरफ पहल किया। यकीनन आप काबिल मुबारकबाद हैं। अज़ीज़ तलबा, आप कुरान और हदीस का मुताला कीजिए। ये डिबेट, मुबाहिसा, मुनाजरा, ज़हन का टेस्ट, तालिब इल्म का इम्तिहान लेना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। बुखारी की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए थे, एक सवाल पूछ दिया। बड़े प्यारे साहब कराम थे, सवाल पूछ दिया, ये दरख्त है कि वो कभी मरता भी नहीं है, उसमें हमेशा फल खाते रहता है। अल्लाह के रसूल ने एक सवाल रखा,
दिमागी टेस्ट इम्तिहान जहन गुसात करने के लिए अल्लाह के रसूल ने बड़े बड़े अल्लाह सहाबा अब्दुल्ला बिन उमर छोटे सहाबा हैं, वो भी हैं मजलिस में। तमाम सहाबा इकराम अपने दिमाग को दौड़ाए लेकिन किसी ने इस मसले को हल नहीं कर पाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए, कहा कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन चूंकि अजिल्लाए सहाबा मौजूद थे आपने नहीं बताया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बात मालूम हुई, कहा कि बेटा अगर तुम कह देता तो मेरे लिए सुर्ख वोट से भी बेहतर होता। मालूम हुआ ये मुबाहसा दिमागी टेस्ट इम्तिहान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ है और उसी के नमायज आज हम देखते हैं। मैंने पहले भी रहा तो उसमें मेहनत और जहानत अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमत है। मेहनत आपको करने के लिए अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया। इतनी जल्दी जल्दी दुनिया बदलने लगे हैं, जो हज़ारों लाखों साल से पहले चली आ रही थी वो फटाफट ख़त्म होने के बाद इधर का दौर शुरू हो गया। आपको भी उससे मतलब कहीं फास्ट आप काम करना है जो पहले आप काम कर रहे थे, उससे जितना आप मतलब तेज़ी के साथ कीजिएगा उतने आप तेज़ी के साथ आगे बढ़िएगा। और अगर उसको आप जानकारी नहीं रखेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद था कि दुनिया बहुत तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया है, यानी आप बैठे बैठे किसी भी चीज़ से कोई भी काम आप कर सकते हैं। आपको वहां तक पहुंचने के लिए इब्तदाई चीज़ों को सबसे पहले महफूज करना ज़रूरी है। आप किताब का इल्म नहीं रखेंगे, यूट्यूब वाले इल्म अगर ले लेंगे तो वो यूट्यूब वाला इल्म जो है वो आपके लिए पायदार इल्म नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, उन जुहला के लिए है जो उतना ही तक सुनते हैं। नहीं तो यूट्यूब वगैरह के अंदर आप कोई भी तहकीक कोई एक मौजू सुन लीजिए, उसके बाद फिर कहिएगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा क्या क्या यूट्यूब में हम ये किए थे। मोटा मोटी 2-4 बातें आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। आपका जहन मोबाइल वाला नहीं होना चाहिए, कम से कम आप मोबाइल का इस्तेमाल करें। मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत के तहत ही करें, उसके भी बहुत सारे आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसानात हैं। आपको जहन भटका देगा वो आप एक चीज़ सोच के जाइएगा कि ये तहकीक करें, मान के आप कहते हैं कि हम तहकीक करें, लेकिन एक तहकीक के साथ आपके साथ 3-4 एडवर्टाइज ऐसी चीज़ें आ गई कि आपका जहन भटक जाता है। तो आपका जहन जो ही भटका आपकी पुख्तगी फिर ख़त्म नहीं हुई। इसलिए आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें, किताबों से इस्तेमाल